Let's start our today class. Till we complete what is economics, what is economy, what is economic problem that we know wants are unlimited, resources are scarce, and resources have an alternative uses. Then what is economics? Economics is a subject matter that focus on rational management of scarce resources in such a manner that our economic gains are maximized at micro level as well as at macro level. What is economy? Economy is a system spread over a particular area that reveals the nature and level of economic activities in that area. What shows? It shows how people of concerned area earn their living. किसी भी जगह की इकोनॉमी हमें क्या समझाती है, क्या बताती है कि वहां पे जो लोगों का इनकम सोर्स है कैसा है, कहां से आता है. If we study about our Indian economy, at the time of independence, our Indian economy is agricultural economy. That means at that time, most of people depend on agriculture. Our main source of income is agriculture. But at present, we are emerging industrial economy. What do you mean by emerging industrial economy? That means we are moving from agriculture economy and forwarding to industrial economy. You must know that कोई भी इकोनॉमी अगर इंडस्ट्री पे डिपेंड होगी तो उसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं. आगे जाके पढ़ेंगे, +2 में भी पढ़ेंगे. एक बैकवर्ड इकोनॉमी होती है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी होती है और एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती है. यहाँ पे जो अभी मैं आपको बात कहने वाला हूं, इमोशनल मत हो जाना कि ऐसे कह रहे हैं. इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमी अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड होती है, कोई भी इकोनॉमी अगर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड होती है तो उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी. बट नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर बैकवर्ड इकोनॉमी. बट नाउ एट प्रेजेंट वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी. वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी. हम डेवलप कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं. Japan, France, Britain, these economies are totally developed economies. That means these economies are totally depend on industrial economy. These are industrial economy. The more income of these economies are depend on industries and service sector. You know, there are 3 sectors of an economy: primary sector, industrial sector, and third one is tertiary sector. Primary sector is depend on agriculture. Primary sector is agriculture sector, and secondary sector is industrial sector, and service sector is tertiary sector is known as service sector. One question is, sir, what is the reason behind called agriculture economy backward economy? Yes, because agriculture is, you know very well, the agriculture is depend upon nature, and nature is vulnerable. What do you mean by vulnerable? That agriculture is mostly depend on nature. That means on rainfall. Good rainfall means good mosam, means good agriculture production. Bad nature, bad rainfall, bad mosam means poor output. That means poor income, poor employment, and so on. क्योंकि इन इजी सेंस में बताता हूं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भाई जी
डिपेंड करता है नेचर से, और नेचर हमारे हाथ में नहीं है। इंडस्ट्री हमारे हाथ में है, सर्विस सेक्टर हमारे हाथ में है, उसमें नेचर का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर में टोटली नेचर का ही रोल है। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को इस वजह से बैकवर्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इन डेप्थ में आप 12th में ये हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसमें भी बातचीत करेंगे इंडिपेंडेंस के समय से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने ऐसे क्या स्टेप्स टेक ओवर किए कि हमारी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। आफ्टर द ब्रिटिशर्स, जब 1947 में हमें आजादी मिली तो हमारी इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ, और 1990s आपने शायद 9th या 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, LPG पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाई LPG पॉलिसी इज अडॉप्टेड, क्यों हमें LPG पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी, ये सब हमारा 12th का हिस्सा है। One more question is there. The resources have alternative use. How can this be problem? Is it beneficial that we have we can use one resource for various purposes? Otherwise, we will know the difference resource for different purpose. यहाँ पे बातचीत क्या थी, ये डाउट है हरविंदर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी वांट्स बहुत ज्यादा है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए ऐसा भी होना चाहिए, बट द रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स है, कम है, और वो जो रिसोर्सेज कम है उसके यूजेस भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। डिफरेंट डिफरेंट यूजेस का यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरे पास, जैसे हमने एग्जांपल की थी कि हमारे पास 100 रुपी है, उस 100 रुपीज को हम 3-4 पर्पजेस के लिए, एग्जांपल में किया था 3-4 पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, अगर उस 100 रुपी को मान लो सिर्फ और सिर्फ मैं टेस्ट भरने के लिए ही यूज कर सकता, तो शायद मैं अपनी टेस्ट वाली वांट को सेटिस्फाई कर लेता और बाकी देखी जाती बाद में। लेकिन और ज्यादा प्रॉब्लम कैसे राइज हो रही है कि उन रिसोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। वही 100 रुपी टेस्ट भरने के भी काम आ सकती है, वही 100 रुपी लंच करने के लिए भी काम आ सकती है, सो है ना। सो इस वजह से इस हिसाब से कहा गया है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स है और ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। जो रिसोर्सेज है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए इजी वे में, हमारे पास 2 लाख रुपीज है, जैसे मान लो कोई शादी ब्याह का माहौल होता है घर में, तो शादी ब्याह में हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो ऐसे तो नहीं अनलिमिटेड होते हैं। मान लो अगर शादी ब्याह में हमने 10 लाख लगाना है ना, बातचीत होती है ना, आपने सुना होगा 10 लाख लगाना है, 20 लाख लगाना है, 50 लाख लगाने हैं। सपोज वी हैव टू स्पेंड 10 लाख रुपी इन द मैरिज, है ना। सो हमें मैनेज तो करना पड़ेगा ना। वो 10 लाख, भाई बहुत सारे पैलेसीज ऐसे हैं, बहुत सारे मैरिज पैलेसीज ऐसे हैं जो कि मेरे हिसाब से मोर देन 10 लाख सिर्फ पैलेस वाला अपनी स्पेस प्रोवाइड करने के लिए ही चार्ज कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, मोर देन 10 लाख वो चार्ज करते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे क्या है, 10 लाख में तो अच्छी खासी शादी अरेंज हो जाती है, पैलेस वाला भी हो जाता है, खाने का भी हो जाता है, और जो पेरेंट्स ने अपनी लड़की को कुछ भी है ना एज अ गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड करना है, वो सब कुछ भी हो जाता है। सो we have to decide that where we spend our scarce resources, where we spend according to our needs, according to our economic gain. If we are consumer, we spend our resources according to maximum satisfaction, and if we are producer, we spend our resources from where we get maximum of profits. And if we are government, then government, the main motive of government is मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। यस, जिनकी ये क्वेरीज थी प्लीज बताइए कि आपकी क्वेरीज क्लियर और अभी भी कुछ पेंडिंग है। रोमांचक जी और अरविंद, यस बेटा प्लीज बता जरूर दीजिए, दिया कीजिए। ऐसे होता है कि बच्चों को अगर ना समझ आया तो फायदा कोई नहीं है मेरे यहाँ पे।
ओके, थैंक यू, क्लियर है, ठीक है जी। तो आज बेटा जी आप देख रहे होगे, आपके सामने मैंने ब्लैक स्क्रीन की बजाय नोट्स बना के आपको शेयर कर रहा हूं। द रीजन बिहाइंड दिस, लिखने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है तो टॉपिक कम हो पाता है ना। तो मैंने सब कुछ इसमें पहले एक्सप्लेन किया है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। What are the main problems of an economy? What are the central problems of an economy? From the first chapter, this topic is, we can say this topic is too much important. There are three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. इन तीनों में से आपको जब भी आपका फर्स्ट चैप्टर का चाहे वो फर्स्ट टर्म में आए, चाहे आपको फाइनल टर्म में आए, क्योंकि 11th में है, पूरा सिलेबस ही आना होता है, तो मैक्सिमम चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ये नहीं है मैं ही पेपर डालूं तभी आएगा, कोई भी टीचर इसको डाले तो मेरे हिसाब से इसको जरूर इंक्लूड करते हैं, because this is very important concept of our first chapter, that is introduction to microeconomics. ठीक है, सो अच्छे से समझना। व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों की अगर बात करें, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? दीज थ्री आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपको पूछा जाता है व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विच एवरी इकोनॉमी फेसेस, ध्यान से सुनना लैंग्वेज, विच एवरी इकोनॉमी फेसेस। Every economy means either rich economy or poor economy or medium economy. मतलब these central problems are faced by even Pakistan economy, even Indian economy, and even American economy. ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है सभी कंट्रियों को फेस करनी पड़ती हैं। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए? क्यों क्यों हमें ये सोचना पड़ता है, क्यों हमें ये देखना पड़ता है? द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई एवरी इकोनॉमी फेसेस दीज थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। टेल मी व्हाट इज द मेन रीजन? क्या रीजन हो सकता है कि किसी भी इकोनॉमी को ये तीनों प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहले आंसर दिया है अर्चिता ने, यस, बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्कार्स। नेक्स्ट आंसर इज नवजोत सिंह, बिकॉज अनलिमिटेड बॉन्ड्स। और कोई? यस, बिकॉज इट इज नॉट फुली डेवलप्ड। व्हाट इज नॉट फुली डेवलप्ड, रमंचर? I give you permission to unmute your mics. Yes, अब आप माइक भी अनम्यूट करके बता सकते हो अगर कोई चाहे। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यस, मतलब कंबाइन में हम क्या कहते हैं, किसी भी इकोनॉमी को ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ती है? बिकॉज भाई इकोनॉमी लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल पे भी ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो क्या है? बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कार्स है, और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। वाले डेवलपिंग में वो फेस मैं क्या कह रहा हूं आपको, माइक म्यूट कर लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान दीजिए।
ये जो तीनों प्रॉब्लम्स है इवन के अमेरिकन इकोनॉमी को भी फेस करनी पड़ती हैं। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। शायद आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी बताया था कि अगर आप लोग ये सोचो कि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप ये सोचो पॉवर्टी, अगर आप ये सोचो इलिटरेसी, ये सब इंडियन इकोनॉमी की ही फीचर्स है। नहीं, ये सब भाई डेवलप्ड इकोनॉमीज के भी फीचर्स हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी लोग कम पढ़े लिखे, वहां पे भी बैकिंग होती है, वहां पे भी लोग भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, वहां पे भी पॉवर्टी है, वहां पे भी बेरोजगारी है। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हर इकोनॉमी में पाई जाती है, चाहे कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है, चाहे कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे कोई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो समझ आ गया, देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस में भी दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। दैट फर्स्ट इज we decide what type of goods are to be produced। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने किस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करना है, हमें किस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करना है। बेसिकली वी हैव फोर टाइप ऑफ गुड्स। We have four type of goods to be produced। बेसिकली जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, इकोनॉमी लेवल पे क्या बनाएं, कंट्री लेवल पे, तो हमारे सामने चार तरह की, फोर टाइप्स की हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज आर कंज्यूमर गुड्स, दीज आर कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। फर्स्टली व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? दीज आर दोज गुड्स which are used by the consumer to get maximum satisfaction। Whatever which is used by consumer, these are known as consumer goods। The main motive of every consumer is, we know very well, the main motive of every consumer is to get maximum of satisfaction। The examples are ghee, bread, clothes, furniture, mobile phones, etc. Whatever which is used by consumer are known as consumer goods। The second is capital goods। What are capital goods? Those goods which increase production capacity of a producer। वो सभी गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं जो कि प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं। जैसे किसान के लिए ट्रैक्टर, प्रोड्यूसर के लिए फैक्ट्रीज में मशीनरी, ये सब किसका पार्ट रहता है? कैपिटल गुड्स का, विच हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। थर्ड इज वॉर टाइम गुड्स। वॉर मीन्स लड़ाई, जंग। वॉर टाइम गुड्स कौन सी होती है? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज एट द टाइम ऑफ वॉर, जो कि लड़ाई के समय में काम आती है। और लड़ाई के समय में क्या कुछ काम आता है? एज वी नो, गन्स, बॉम्ब, टैंक्स, राइफल्स, है ना। दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज एट द टाइम ऑफ वॉर। एंड द फोर्थ टाइप इज पीस टाइम गुड्स। व्हाट आर पीस टाइम गुड्स? अब वॉर टाइम गुड्स, मैंने आपको ये कहा है कि वॉर टाइम गुड्स क्या है? जो कि वॉर के समय में काम आती हैं। तो पीस टाइम गुड्स आप ये कहोगे, सर दीज आर दोज गुड्स विच आर, है ना, विच आर नीड और विच आर यूज एट द टाइम ऑफ पीस। शांति के समय में जो गुड्स काम आती हैं, व्हाइट कलर के फ्लैग्स, है ना, लाइक नो। व्हाट आर पीस टाइम गुड्स हियर? पीस टाइम गुड्स आर पेरिशेबल गुड्स। These are, यहां पे लिखता हूं, these are known as perishable goods। Clear? Perishable goods, the word perish means खराब होना। तो perishable goods are those goods
which perish quickly, जो कि जल्दी खराब हो जाती है। तो ये हमारा what to produce में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, that हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। तो हमने ये देखा कि हम 4 तरह की गुड्स को, 4 टाइप्स की गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेम आर कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। ठीक है, हम ये देख लिया कि हम क्या कुछ बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या राइज होता है कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं। जैसे आप शाम को घर पे गए, स्कूल के बाद, ट्यूशंस के बाद आप घर में गए, सर कंज्यूमर गुड्स में ब्रेड एटसेट्रा पेरिशेबल है, यस इज अ पार्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स को मतलब वैसे ही अलग से आइडेंटिफाई कर लिया, इज अ पार्ट ऑफ मे बी प्रोड्यूसर गुड और मे बी कंज्यूमर गुड। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे आप घर पे गए, घर पे जाने के बाद आफ्टर द स्कूल, आफ्टर द ट्यूशंस है ना, घर पे 5-6 बजे आप गए, आपको भूख लगी है, तो आपने मम्मा से कहा कि मम्मा कुछ बना दीजिए। तो मम्मा ने कहा, आपको पहले ऑप्शन दी, जैसे हमने की है ना, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, तो उस तरह से आपकी मम्मा ने ऑप्शन दी कि क्या कुछ बना सकते हैं बेटा, मैगी पड़ी है घर पे, बेटा सैंडविच बना के खिला सकती हूँ, बेटा राइस बना देती हूँ, है ना, या बेटा गर्मी का सीजन है, कोई ठंडा दूध, कोई नींबू पानी, सैलेड खा सकते हैं, कॉर्न खा सकते हैं ना, कुछ भी, और कुछ भी खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई इडली ढोकला केक कुछ भी खिला देती हो। तो आपकी मम्मा ने ये ऑप्शन दी, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये खाना है। तो उसके बाद क्या डिसाइड होगा, इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। ये डिसाइड करने के बाद कि हमने क्या कुछ बनाना है, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अगर मैगी बनानी है, ऐसे तो नहीं है घर में फैमिली पैक पड़ा है और फैमिली पैक बना डालेंगे, नहीं, देखेंगे तो सही हमारी जरूरत क्या है, हमारी नीड क्या है। आपने कॉर्न बनाने के लिए कहा, ये तो नहीं है कि पापा पूरा पैकेट लाए थे बड़े वाला 1 kg का कॉर्न का और पूरे का पूरा बना देंगे, उसके बाद है ना थोड़ा बहुत खा लिया, उसके बाद गऊ को खिलाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। After deciding what type of goods are to be produced, we must decide in what quantity of goods are to be produced. हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि कितनी क्वांटिटी में हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों ये सब कुछ क्यों डिसाइड करना पड़ रहा है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, दैट फर्स्ट वी डिसाइड what type of goods are to be produced and after that we decide in what quantity of goods are to be produced. Kyun? Why? The main reason behind this. Yes, quickly. In one word. No. To get satisfaction is a wrong answer. Alternative use, no, wrong answer. Why we decide demand? No, wrong answer. One word. Quickly. Yes, the correct answer is scarcity of resources. Every problem arises. Why? What is the main reason behind that? Why this problem arises, Bhaiji? The main reason behind this is due to scarcity. अगर स्कार्सिटी ना होती, अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम ना होते, तो क्या ये देखना पड़ता क्या क्या बनाए और कितना बनाए, कितना भी बना लेते, क्या दिक्कत है? हम कंज्यूमर गुड्स भी बनाते, हम वॉर टाइम गुड्स भी बनाते। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मेरे यहाँ पे भी नोट डाउन की है। Suppose we decide that we produce 2 type of goods from the 4 types. One is wartime goods and the second one is consumer goods. Suppose we have 100 crore, that is our resource, 100 crore, and we spent our resources to produce these consumer goods. हमने अपने ये सारे के सारे रिसोर्सेज, ये 100 करोड़ कंज्यूमर गुड्स को बनाने में लगा दिए। भाई हमने वॉर टाइम गुड्स बनाई नहीं, और चाइना ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, श्रीलंका ने मिलके इंडिया पे धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। देन नाउ व्हाट वी डू, क्या करेंगे? मर जाएंगे?
जब अपने पास वॉर टाइम हमने गुड्स बनाई नहीं है, ना बम बनाए, ना टैंक बनाए, कुछ भी नहीं बनाया, जितने रिसोर्सिस थे सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स पे बना लगा दिए, खत्म। जब जिंदा ही नहीं रहे तो खाएंगे क्या? बात खत्म। अगर अब सेकंड ऑप्शन, अब अगर आपने मान के चलो सारे के सारे रिसोर्सिस वॉर टाइम गुड्स के ऊपर खर्च कर दिए, कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाई, अब क्या प्रॉब्लम होगी? पता नहीं वॉर होगी नहीं होगी। अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, पता नहीं वॉर करेगा या नहीं करेगा, हमला करेगा या नहीं करेगा, लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे। So we have to decide that what type of goods are to be produced and in what quantity of goods are to be produced. The main reason behind this is scarcity. What is the main reason is? That is scarcity, because we have scarce resources. अब आपको यहाँ पे एक और बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आप सभी अगर थोड़ा बहुत न्यूज को लाइक करते हो या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तो अगर आपने आसपास सुना है या सोशल मीडिया पे देखा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास है ना, ना कहीं पे ऑक्सीजन मिल रही है लोगों को, ना कहीं पे ये है, ना कहीं पे वो है, लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। जब ये सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन वी मस्ट नो दैट गवर्नमेंट आल्सो हैव स्कार्स रिसोर्सेज। आप ये सोच के देखिए, आज के समय में लोग इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं, हम सब इस बात के लिए मरे जा रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। सोच के देखिए, आज तक 75 साल हो गए हमें लगभग आजाद हुए, तो क्या किसी सरकार ने आज तक 70 साल से कोशिश की कि कहीं ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएं? अब जाके ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, है ना। मतलब all the reason behind these problems are that we have scarce resources. गवर्नमेंट को भी अब चॉइस करनी पड़ रही है। तो भला हो हमारे लोगों का, अच्छे वाले लोगों का। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग भी आज के समय में है। अगर आपने सुना है ना कि वो एक इंजेक्शन है कोविड-19 के समय में जो हेल्प करता है, रेमडेसिविर, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो कुछ लोग हैं वो 80,000 का, 1 लाख का वो इंजेक्शन सेल कर रहे हैं, और उसकी शायद एक्चुअल प्राइस तकरीबन कोई 1,000-1,500 इसके आसपास है। हम लोग गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हमें पहले ये देखना चाहिए कि हम पब्लिक, हम पीपल अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोगों में ये लगा रहता है कि सारी दुनिया का धन हम ही लोग इकट्ठा कर लें, पर ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से, दैट इज माय पर्सनल व्यू, ऐसी सिचुएशंस में इकट्ठा किया गया ऐसा बुरा धन शायद वो हमारे अच्छे काम के लिए यूज नहीं होता है ना। तो जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम देश को नहीं बदल सकते हैं। सो वी मस्ट हैव चेंज आवर थिंकिंग अबाउट दीज ऑल। चलो, तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस इफ एनी क्वेरी। फर्स्टली, क्विकली आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो जल्दी से, नहीं फिर वी हैव ओनली 5 मिनट्स और एक प्रॉब्लम और कर लेंगे हम। नो क्वेरी सर, क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच, कोई डाउट नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे ऐसे ही आप सभी को समझ आता रहे, मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। इस ऑनलाइन के समय में बड़ी मुश्किल रहती है बच्चों में कि ये समझ नहीं आया, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन के समय में समझ आ रहा है तो मैं अपने खुद के लिए भी इसे अप्रिसिएशन कहूंगा और आप सभी के लिए भी कि आप सभी लोग ध्यान से समझ रहे हो। Second problem is how to produce. Now, after deciding what to produce, हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, हम ये डिसाइड करते हैं, अब ये डिसाइड करना होगा कि कैसे बनाना है। आपने डिसाइड किया कौन खाना है, ठीक है मम्मा कौन बना दीजिए। उसके बाद डिसाइड करना होगा कौन बनाना कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू कुक कॉर्न।
कौन बेटा जी, माइक्रो में बना के दूं या सैलेड के रूप में, उसमें साथ में ककम्बर, टमाटो, अनियन है ना, लिटिल बिट चॉप पनीर, ऐसा कुछ बना के सैलेड के रूप में ऐसा कुछ खाना पसंद करोगे? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे कैसे बनाए, ये तो घर की बात होगी। अब यहाँ पे देखिए, that after deciding what type of goods are to be produced, we must decide how to produce, कैसे प्रोड्यूस करें। To produce the goods, ध्यान दीजिए, to produce the goods we have two type of techniques. To produce the goods we have two type of technique. First is capital intensive technique and the second one is labor intensive technique. हमारे पास दो तरह की टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में हम कैपिटल का, पैसे का ज्यादा यूजेस करते हैं और लेबर का कम यूज करते हैं, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का ज्यादा यूज करते हैं और कैपिटल का कम यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, वी हैव टू टाइप ऑफ टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स। First is capital intensive technique and the second one is labor intensive technique. In capital intensive technique, we use more of capital, more of machinery and less of labor. But in labor intensive technique, we use more of labor and less of capital, less of machinery. अब फटाफट अपना माइक या चैट बॉक्स ओपन करके रखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में से बेस्ट, दोनों में से आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे क्विकली, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी टेक्निक, विच टेक्निक इज बेटर? यस, आंसर इज रोमांचक बांसल कैपिटल एंड आफ्टर दैट खुशी कैपिटल, लवशिका कैपिटल, हरविंदर कौर लेबर इंटेंसिव। हाउ यू कैन डिसाइड, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी टेक्निक यूज करूं, मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं? कौन बता सकता है कैसे डिसाइड किया? माइक ऑन करके बताइए, नॉट इन चैट बॉक्स। कैसे डिसाइड किया आपने कि आप कैपिटल यूज करोगे या लेबर? Sir, which give more 2 minutes remaining. Yes. Satisfaction से profit. बोलिए। Satisfaction से profit ज्यादा मिलेगा। ओ भाई, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं आप, क्या नाम है आपका, कौन बोल रहे हो? ओ बेटा जी, नाम क्या है? नवजोत सर। नवजोत जी, थोड़ा सा गलत हो गया। एक बात तो पहले हमें अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब आप प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का तो रोल ही खत्म। नेक्स्ट आंसर इज क्विकली बताएं। सर प्रॉफिट होगा उससे, सर प्रॉफिट होगा उससे कैपिटल से। और सर विच गिव मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। या किसने बताया ये? शगन। हाँ, क्या बात है। देखिए भाई, अब हमारे पास गुड्स को प्रोड्यूस करने की दो टेक्निक्स हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सबसे पहले कैसे देखेंगे कौन सी टेक्निक बनाएंगे? आप देखिए, सिंपल में आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। पूरा एक्सप्लेन करना होता है। इकोनॉमिक्स में आप एक्सप्लेनेशन को खा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि चल छोड़ यार, ऐसा लिख दिया, इतना लिख दिया, बहुत है, नहीं। तो दोनों में से कौन सी टेक्निक यूज करोगे? वो टेक्निक यूज करोगे जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी विद मिनिमम इनपुट, कम से कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। दूसरा, कैसे डिसाइड करोगे कौन सी टेक्निक यूज करनी है कि आपकी फैक्ट्री कैसी है, आपकी इंडस्ट्री कैसी है। अगर आपकी फैक्ट्री स्मॉल है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम है, स्मॉल इंडस्ट्री है, तो आप ज्यादा चॉइस किसकी करोगे कि आप कौन सी टेक्निक यूज करो? दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? क्योंकि अगर मशीन के ऊपर सारे का सारा पैसा लगा दिया, बाकी काम कैसे करोगे? और अगर आपकी लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है, बड़े लेवल पे, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। Small scale industry must prefer labor intensive technique and large scale industries must prefer